हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 नवंबर को शिफ्ट 1 में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन है तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्रेडिशनल कल्चर्स एज मेंशन इन द पैसेज? Harmonization of cultural practice. Second, strengthening of indigenous languages. Third, increased protection of local customs. Fourth, preservation of traditional agriculture method. Second question क्या है? How does globalization contribute to the erosion of traditional cultures according to the passage? By leading to the dominance of Western media and consumer goods, by promoting the revitalization of indigenous art forms, by providing resources for the preservation of language and customs. Fourth, by encouraging local government to support cultural diversity. Question number 3. What can be inferred about the role of social media in the preservation of traditional cultures? First, social media has no role in the exchange of cultural practice. Social media helps in diminishing the appreciation of indigenous culture. Social media provides a platform for the global sharing and awareness of traditional cultures. Fourth, social media only helps in promoting modern global trends at the cost of traditional cultures. Question number 4. What does the term homogenization most clearly means? मतलब इसका synonym बताना है ना, in the context of passage. Question number 5. What is the tone of the passage? Reflective and analytical, critical and pessimistic, enthusiastic and optimistic, descriptive and neutral. अब हम अपना पैसेज पढ़ लेते हैं. Globalization, characterized by the increased interconnectedness of the world through trade, technology, and communication, has profoundly impacted traditional cultures. While it has facilitated economic growth and idea exchange, it has also challenged the preservation of cultural identities and practices. Traditional cultures, rooted in centuries old customs, languages, and way of life, face both opportunities and threats in the globalizing world. A major effect of globalization is the homogenization of cultural practice. As global media and multinational corporations spread, Western ideas, consumer goods, and entertainment often dominate local markets, overshadowing indigenous traditions. For example, the popularity of fast food, Hollywood films, and English as a lingua franca can lead to decline in traditional diets, languages, and artistic expressions. Younger generations may adopt global trend at the expense of cultural heritage, eroding local customs and practices. However, globalization also provides opportunities for the revitalization of traditional cultures. Social media and digital technologies enable communities to share their customs, art, and language globally, fostering awareness and appreciation. This interconnectedness has led to cultural exchange that can enrich societies and help preserve and adapt traditional practices in innovative way. In conclusion, the impact of globalization on traditional cultures is complex. While it challenges cultural preservation, it also creates new avenues for cultural expression and recognition. The key is finding a balance between embracing modernity and safeguarding the richness of traditional cultures. अब क्वेश्चंस दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार. Which of the following is a primary consequence of globalization on traditional cultures? Harmonization of cultural practices या स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस. देखो कॉन्सिक्वेंस पूछा है ग्लोबलाइजेशन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्रेडिशनल कल्चर, दैट इज homogenization of cultural practice. Option number 1 is the correct answer. Question number 2. How does globalization contribute to the erosion of traditional cultures according to the passage? ग्लोबलाइजेशन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है ट्रेडिशनल कल्चर को इरोजन मतलब थोड़ा सा कम करने के लिए. बाय लीडिंग टू द डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न मीडिया एंड कंज्यूमर गुड्स, है ना. पैसेज में यही लिखा है कि वेस्टर्न मीडिया पे जो यंगर जनरेशन है वो ज़्यादा ध्यान दे रही है एंड कंज्यूमर गुड्स पे भी. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. What can be inferred about the role of social media in the preservation of traditional cultures? सोशल मीडिया क्या रोल प्ले कर रही है ट्रेडिशनल कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए? सोशल मीडिया हैज़ नो रोल इन द एक्सचेंज ऑफ
कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। नो रोल बोल दिया उन्होंने, ऐसा थोड़ी ना है। सोशल मीडिया हेल्प्स इन डिमिनिशिंग द एप्रिसिएशन ऑफ इंडिजीनियस कल्चर। डिमिनिशिंग भी वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। सोशल मीडिया प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द ग्लोबल शेयरिंग एंड अवेयरनेस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। यस, यही सबसे सही मेथड है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे को पहले होमोजेनाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो हम उसका मोस्ट क्लियरली मीन देखेंगे। तो होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेकिंग थिंग्स सिमिलर और यूनिफॉर्म। मेकिंग थिंग्स सिमिलर और यूनिफॉर्म। तो इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है मतलब कुछ नया ढूंढना, तो नहीं, मतलब कुछ नया इन्वेंट करना, इनोवेशन। तो हमारे को तो जो थिंग्स को सिमिलर और यूनिफॉर्म बनता है वो। डाइवर्सिफिकेशन तो अलग अलग होता है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर और डिसकनेक्टेड पार्ट्स। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है डिफरेंट कल्चर स्टार्टिंग टू फॉलो द सेम लाइफ स्टाइल। यहाँ लिख देती हूँ, डिफरेंट कल्चर starting to follow the same lifestyle. इनोवेशन का भी मैंने आपको बताया ना, इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू। डाइवर्सिफिकेशन, इंक्रीजिंग वेराइटी और डिफरेंसेस। फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर और डिस्कनेक्टेड पार्ट्स। और स्टैंडर्डाइजेशन, ये हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? रिफ्लेक्टिव एंड एनालिटिकल। तो हमारी जो टोन है वो कैसी है? देखो, रेफर कर रहा है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, और एनालिटिकल भी है। क्रिटिकल, किसी को क्रिटिसिज्म तो कर नहीं रहा। ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, ऐसा तो बताया नहीं है कि मतलब कुछ खुशी की बात तो बताई नहीं है ना पैसेज में, एंथुसियास्टिक या ऑप्टिमिस्टिक। और न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं कह सकते हैं क्योंकि पूरी हमारे को रिफ्लेक्ट किया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज़ एंटोनिम ऑफ द वर्ड अपीज्ड। अपीज्ड का मतलब क्या होता है? इज काम्ड, सेटिस्फाइड, काम्ड, सेटिस्फाइड। और मेड लेस एंग्री, और मेड लेस एंग्री। तो हम ऑप्शंस में देखते हैं। वी वेलकम्ड आर न्यू क्लीक इन अ ग्रांड मैनर। देखो यहाँ पे वेलकम्ड का मतलब होता है, वेलकम्ड मतलब शो हैप्पीनेस। हमारे को एंटोनिम देखना है जो काम, मतलब एंटोनिम क्या होगा अपीज्ड का? जो एंग्री रहता हो हमेशा, है ना, या इरिटेट रहता हो। तो वैसा देखो, वेलकम मतलब शो हैप्पीनेस, तो ये हो नहीं सकता। ही कॉज्ड अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस ड्यू टू हिज डेविल मे केयर एटीट्यूड। तो इनकन्वीनियंस, हम यहाँ पे वर्ड देखेंगे, इनकन्वीनियंस मतलब अनोयंस। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ह्यूमिलिटी ऑफ द मेयर व्हेन आई मेट हिम। ह्यूमिलिटी मतलब वो उन्होंने कैसे केयर करी आपकी। ह्यूमिलिटी मतलब पॉजिटिव फीलिंग। द इनकम्प्लीट वर्क होमवर्क इन्फ्यूरिएटेड माई क्लास टीचर। इन्फ्यूरिएटेड का मतलब है इनकम्प्लीट वर्क था, तो टीचर को एंग्री कर दिया, वेरी एंग्री, एंग्री। इरिटेट। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Question number 7. Select the most appropriate article to fill in the blanks. If no article is needed, select no article required. Hiking across dash Himalayas is going to be difficult. देखो, हिमालय माउंटेन रेंज है, तो जो हम द, क्या आएगा यहाँ पे आंसर? द। जो द का यूज़ होता है ना, वो हम यूज़ करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, seas,
oceans and group of islands. Group of islands, है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, द. क्वेश्चन नंबर 8, select the most appropriate option to fill in the blanks. The dash scientist presented dash analysis of the data offering dash perspective of the experiment outcomes. देखो, जो साइंटिस्ट है उसने अच्छा काम किया है, एनालाइज किया है, तो कैसा कैसा साइंटिस्ट होना चाहिए. हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे हार्ड वर्किंग या केयरफुल, है ना, ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे. कैजुअल, कैजुअल मतलब नॉर्मल सा. डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, केयरफुल, तो यहाँ पे तो. और देखो अपैथेटिक मतलब बेकार. इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब भी होता है मतलब जो डिफरेंट ना हो. तो हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे, डिलीजेंट. एक ऑप्शन से ही हमारे को आंसर पता चल गया क्योंकि डिलीजेंट एक ही में. डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग एंड केयरफुल. मैं यहाँ पे आपको तीनों मतलब लिख देती हूँ. डिलीजेंट का, थोरो एंड नोबल. देखो, डिलीजेंट साइंटिस्ट मीन्स हार्ड वर्किंग एंड केयरफुल एंड थोरो एनालिसिस. थोरो मतलब अच्छी तरह एनालाइज किया है. डिटेल्ड एंड कंप्लीट, डिटेल्ड एंड कंप्लीट. एंड क्या है, एंड नॉवल पर्सपेक्टिव. नॉवल पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है, न्यू एंड ओरिजिनल, न्यू एंड ओरिजिनल. तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. Underlined word क्या है, I will not consider even a speck of an argument. तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड क्या है, स्पेक. स्पेक का क्या मतलब होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट और टाइनी पार्टिकल. वेरी स्मॉल अमाउंट और टाइनी पार्टिकल. अब पहले ऑप्शंस की मीनिंग देख लेते हैं. क्या है, प्रोफ्यूजन. प्रोफ्यूजन मतलब होता है लार्ज अमाउंट और अबेंडेंस. लार्ज अमाउंट और अबेंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में. पेयरिंग, पेयरिंग मतलब होता है रिड्यूसिंग और कटिंग डाउन. रिड्यूसिंग और कटिंग डाउन. क्लिपिंग, क्लिपिंग कटिंग और ट्रिमिंग, कटिंग और ट्रिमिंग. शार्ड, शार्ड क्या होता है, अ स्मॉल ब्रोकन पीस, अ स्मॉल ब्रोकन पीस. अब उन्होंने क्या पूछा, एंटोनिम ऑफ स्पेक इज प्रोफ्यूजन. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्पेक का मतलब है वेरी स्मॉल अमाउंट में एंड प्रोफ्यूजन का मतलब है लार्ज अमाउंट और अबंडेंस. क्वेश्चन नंबर 10, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर. अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ. देखो किस किस से स्टार्ट हो सकता है, ए से, सी से और डी से. एक है, यू आर लेफ्ट चेजिंग द सेम आउटकम बिकॉज यू नेवर चेंज द सिस्टम बिहाइंड इट. बी से हो नहीं सकता. सी क्या है, बट इफ़ यू मेंटेन द सेम स्लॉपी पैक रैट हैबिट्स. देखो बट से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि आप इसको किसी चीज़ को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो कि ये ऐसे नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो, है ना. तो सी से तो हो ही नहीं सकता, ये एलिमिनेट हो गया. डी देखते हैं हम. इमेजिन यू हैव अ मेसी रूम एंड यू सेट अ गोल टू क्लीन इट. यस, डी से ही स्टार्ट होता लग रहा है. क्यों, क्योंकि आप इमेजिन करना स्टार्ट कर रहे हो और जो ए है उसमें क्या लिखा है कि अगर वैसा ही सेम आउटकम आएगा तो यू नेवर चेंज द सिस्टम बिहाइंड इट. तो उसके पीछे जो सिस्टम है तुम उसको कभी चेंज नहीं कर सकते. तो किससे स्टार्ट होगा, डी से. फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. अब डी के बाद ई आएगा या सी आएगा, पहले ये देखते हैं.
Imagine you have a messy room and you set a goal to clean it. E क्या लिखा है? If you summon the energy to tidy up, then you will have to clean room for now. देखो अगर हम सी को पढ़े तो क्या लिखा है? But if you maintain the same sloppy peck red habits that lead to a messy room in the first place, soon you will be looking at a new pile of clutter. इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ये एक वार्निंग है. अगर तुमने यही जो तुम्हारी ये अभी हैबिट है, तुमने कॉन्सिक्वेंस है हर चीज़ को नेग्लेक्ट करने का या क्लीन ना करने का, वो नहीं छोड़ा तो तुम बिल्कुल तुम्हारा जो रूम है वो बिल्कुल बेकार ही गंदा का गंदा ही रहेगा. मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ. अ वार्निंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेग्लेक्टिंग टू क्लीन एंड ऑर्गेनाइज योर लिविंग प्लेस. इट लीड्स टू अ अगली प्लेस या मैसी रूम. तो डी के बाद हम सी लिखेंगे क्योंकि डी में बताया है कि उसने गोल बनाया है, इमेजिन किया है कि अपना मैसी रूम को क्लीन करेंगे, बट उसके बाद उसको एक वार्निंग मिल रही है अगर नहीं किया तो ऐसा होगा. डी के बाद सी, देन ई, फिर उसके बाद आएगा इफ़ यू समन द एनर्जी टू टाइडी अप देन यू विल हैव टू अ क्लीन रूम फॉर नाउ. अगर आपने एनर्जी को इकट्ठा कर लिया तो आपका रूम क्लीन हो जाएगा. तो डी के बाद सी देन ई. तो ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer. Question number 11. Select the most appropriate option to fill in the blanks. The old mansion had dash charm, making visitors feel like they had stepped into another country. तो कैसा चार्म है जो ओल्ड मैंशन है उसमें? टाइमलेस, टेम्परेरी, अनप्लीजेंट या फ्यूचरिस्टिक? देखो लिखा है स्टेप्ड इनटू अनदर कंट्री, तो फ्यूचरिस्टिक तो हो ही नहीं सकता. ऐसा है कि अनदर कंट्री में आपने स्टेप रख लिया. और फ्यूचरिस्टिक मतलब जो आपको फ्यूचर की याद दिलाए, मतलब फ्यूचर में ऐसा हो तो नहीं, ये तो आ नहीं सकता. अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मतलब अनप्लीजेंट मतलब जो अच्छा ना लगे, तो ऐसे नहीं है. टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए नहीं. टाइमलेस, टाइमलेस का मतलब है अ ब्यूटी और अपील दैट नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल. अ ब्यूटी, टाइमलेस का मेन मतलब है जो कभी फेड ना हो, हमेशा ही अच्छा लगे. अ ब्यूटी और अपील दैट नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल. एंड टेम्परेरी मीन्स शॉर्ट लिव्ड. फ्यूचरिस्टिक रेफर्स टू द फ्यूचर, है ना. फ्यूचरिस्टिक रेफर्स टू द फ्यूचर. और अनप्लीजेंट मतलब जो अच्छा ना लगे. तो हमारा आंसर क्या हो गया? कैसा चार्म है उस ओल्ड मैंशन में? टाइमलेस. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम. स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है. अभी तक हम 2 से 3 बार नवंबर के एग्जाम्स में ही कर चुके हैं. तो स्पिल द मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट, टू रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. Question number 13. Select the incorrectly spelled word in the sentence given below. The professor elucidated quantum mechanics, leaving the students both fascinated and bewildered by the profundity of the subject matter. अगर हम ध्यान से देखें तो elucidated में एक ही एल आता है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. अब हम मीनिंग देख लेते हैं. फैसिनेटेड का क्या मीनिंग होता है? वेरी इंटरेस्टिंग, अमेज्ड. वेरी इंटरेस्टिंग, amazed. Elucidated is explained something clearly. Explained something clearly. Professor, professor मतलब a person who has highest post in the college or university. Profundity is great depth of knowledge. Great depth of knowledge.
Question number 14. Select the most appropriate option to fill in the blanks. If there is no article required, select no article required. The conference focused on dash challenges the United Nations is facing in the 21st century. देखो, जो कॉन्फ्रेंस है उसने फोकस कैसे चैलेंजेस, देखो चैलेंजेस से पहले मतलब चैलेंजेस वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन फेस कर रहा है। तो जो यहाँ पे वर्ड यूज़ होगा, यहाँ पे जो चैलेंजेस है ना वो एक स्पेसिफिक बन गया है, बिकॉज जो ये चैलेंजेस है वो क्या किसकी क्वालिटी दिखा रहा है ऑफ द क्लोज द यूनाइटेड नेशन इज़ फेसिंग द इन द 21st सेंचुरी। मतलब समझ रहे हो ना क्या बताना चाह रही हूँ मैं। यहाँ पे द यूज़ होगा और द क्यों यूज़ होगा, क्योंकि जो चैलेंजेस है वो क्वालिफाई कर रहा है एक स्पेसिफिक क्लॉज को, द यूनाइटेड नेशन इज़ फेसिंग इन द 21st सेंचुरी। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 15. Select the most appropriate meaning of the underlined idiom. My classmate fell for the prank. Hook, line and sinker. तो hook, line and sinker यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? Completely, मैं लिख देती हूँ, completely और totally, without doubt or suspicion, without doubt or suspicion. Okay, to just barely get by or make it, not as easy as it appears to be, to give up without any hesitation or reservation. तो हमारा आंसर क्या हो गया? Completely or totally, without doubt and suspicion is without any hesitation or reservation. Option number 4 is the correct answer. हम जो और वर्ड ऑप्शंस हैं उनके भी मीनिंग देख लेते हैं। तो टू जस्ट बेयरली गेट बाय और मेक इट, देखो टू जस्ट बेयरली गेट बाय और मेक इट इसका क्या मतलब है? मैनेजिंग टू सर्वाइव और सक्सीड विद ग्रेट डिफिकल्टी। मैं लिख देती हूँ मैनेजिंग टू सर्वाइव, ठीक है। नॉट एज ईजी एज इट अपियर्स टू बी मीन्स लुक सिंपल ऑन द सर्फेस बट इट एक्चुअली डिफिकल्ट। लुक सिंपल on the surface but it actually difficult. To give up मतलब to stop trying, to stop trying, to stop trying. Question number 15. Select the most appropriate one word substitute for the underlined sentence segment in the given sentence. He is someone who is fond of fighting, agreeing, seeking out any opportunity to test his skills or and prove his mettle. देखो उथोपियन का क्या मतलब होता है? उथोपियन इज आइडियलिस्टिक। हेडोनिस्टिक इज प्लेजर सीकिंग, अगर ये अंडरलाइन होता ना टू टेस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिज स्किल्स मतलब तो शायद हेडोनिस्टिक आ जाता, बट क्या है? समवन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। तो हमारे को ऐसा वर्ड यूज़ करना है जो हो फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसको हमेशा लड़ने का बहाना चाहिए। ऑब्स्टिनेट इज स्टबॉर्न, belligerent is hostile, aggressive and eager to fight. Hostile, aggressive और eager to fight. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, belligerent. क्वेश्चन नंबर 17. Select the incorrectly spelled word rhythmic, aggressive, flabby या obnoxious. obnoxious होता है,
OBNOXIOUS, obnoxious। और obnoxious का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। और सारे ऑप्शंस की स्पेलिंग ठीक है, रिदमिक, एग्रेसिव एंड फ्लेबी। क्वेश्चन नंबर 18, select the most appropriate adjective to fill in the blanks. Despite the dash weather and the dash terrain, the team remained dash throughout the journey. वेदर देखो, टीम ने मैनेज किया, रिमेन डैश थ्रू आउट द जर्नी। तो ऐसे लिख रहे हैं डिस्पाइट द, बहुत ही बेकार वेदर होगा तभी तो। अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसको प्रिडिक्ट ही ना किया जा सके, वो हम वेदर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि टीम ने मैनेज किया उसी टाइम पे। तो अभी इस सेंटेंस में हम अनप्रिडिक्टेबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्लीजेंट बहुत अच्छा वेदर है, तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा फिर। माइल्ड, माइल्ड में माइल्ड वर्ड भी नहीं यूज़ कर सकते। तो कैसा वेदर? डिस्पाइट द हार्श वेदर। हार्श वेदर मतलब डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, डिफ़िकल्ट एंड सीवियर कंडीशंस। एंड द डैश टेरेन, जब हार्श वर्ड यूज हुआ तो कैसा? टेरेन कैसा? रग्ड टेरेन। रग्ड टेरेन मतलब रस, अनइवन लैंड था, रग्ड टेरेन। द टीम रिमेन डैश थ्रू आउट द जर्नी, द टीम रिमेन रेजिलियंट मतलब एबल टू एंड्योर और रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज। रेजिलियंट, अरे देखो, हार्श, रग्ड, रेजिलियंट। अब हम लिख देते हैं हार्श। हार्श वेदर मीन्स डिफिकल्ट और सीवियर कंडीशन, डिफिकल्ट और सीवियर कंडीशंस। रग्ड टेरेन मीन्स रफ और अनइवन लैंड, अनइवन लैंड। रेजिलियंट, एबल टू एंड्योर, एबल टू एंड्योर एंड रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज। Question number 19. Sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. These students, ये ए से तो स्टार्ट हो नहीं सकता क्योंकि कौन से स्टूडेंट्स पहले तो उनके बारे में बताना पड़ेगा। बी क्या है? द academically inclined students who demonstrated a high level of academic ability are selected through the 11 plus examination under this system. कौन से सिस्टम में? वो तो मतलब बी के, बी हम स्टार्ट पॉइंट ऐसा बोल नहीं सकते कि बी से ही स्टार्ट हो रहा है। एक बार सी पढ़ते हैं क्या है। इंग्लैंड अर्लियर यूज टू फॉलो अ ट्राइपार्टाइट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। डी पढ़ते हैं आप। ऑल दो, हाँ डी से भी स्टार्ट होगा। ऑल दो इट क्लेम टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, दिस सिस्टम क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड द एकेडमिक हायरार्की। देखो, हमने चारों पढ़े, उसमें से हमारे को क्या पता चल रहा है? यहाँ पे इंग्लैंड के एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो इंग्लैंड का ही जिक्र होगा ना कि इंग्लैंड अर्लियर यूज टू फॉलो ट्राइपार्टाइट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इंग्लैंड पहले ये सिस्टम यूज़ करता था, बट द academically inclined students who demonstrated a high level of academic ability are selected through the 11 plus examination under this system. उनको 11 प्लस एग्जामिनेशन पास करना पड़ता था इस सिस्टम में सिलेक्ट होने के लिए। देन क्योंकि सी से एक ही स्टार्ट हो रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। सी के बाद बी, बी के बाद क्या है फिर? दी स्टूडेंट्स आर सेंट टू ग्रामर स्कूल्स विच आर इलाइट इंस्टीट्यूशंस दैट जनरेट स्टूडेंट्स हु आर मोस्ट likely to pursue higher education. Then those who could not qualify for the 11 plus examination are sent to secondary modern schools or technical schools to give vocational and professional training. Then although it claimed to provide equal opportunities, this system created a system of education and academic hierarchy. ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 20.
Select the option that can be used as one word substitute for the underlined group of words in the given sentence. The doctor told him that his child has an extreme fear of balloons because students popped many balloons close to him that hurt his ears during the school function. तो हमारे को किसका फियर ऑफ बैलून्स का वर्ड बताना है. तो ग्लोबोफोबिया इज फियर ऑफ बैलून्स. एक तरह से बैलून की जो शेप होती है वो ग्लोब की तरह होती है, इसलिए हम इस तरह से याद कर सकते हैं, फियर ऑफ बैलून्स. एब्लूटोफोबिया इज फियर ऑफ वॉशिंग और बाथिंग. फियर ऑफ वॉशिंग और बाथिंग. चिरोप्टोफोबिया is fear of hands. Fear of hands. And porphyrophobia. Porphyrophobia is fear of the color purple. Fear of color purple. I hope कि आपको ये 20 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.